Hello everyone. In this video we will continue with introduction to chapter 7 triangles class 9 mathematics NCERT, and this is a part 3 of introduction to chapter 7 triangles. Our today's topic is congruency of triangle. इन इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं कॉन्ग्रेंसी के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बिफोर गोइंग टू द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, पहले हम जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं. व्हाट आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स? और फिगर्स इन द ज्योमेट्री आर लाइक लाइन सेगमेंट, सर्कल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंगल्स, ऑल दीज आर figures. And when they are, these shapes or figures are congruent. If I take any two figures are said to be congruent if they have same shape, उनकी shape same हो, okay, same shape and same size हो. So let's consider two line segment first. पहले मैं दो line segment को consider कर रहा हूँ. Two line segment are AB and CD. Can you see? दोनों की shape same है. How could we know that both the shapes are same? Because both of them, AB and CD, are both line segment. तो इनकी shape तो same है. But what about the size? इसका size में जब हम बात करते हैं line segment की size की बात करते हैं तो we are talking about the length of the line segment. और and in this case AB is 3.9 centimeter and CD is also 3.9 centimeter. So they have same shape. AB and CD have same shape and same size. That means their length is same. So we can say that CD is congruent to AB. सी कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है बेटा? एक इज इक्वल टू डाल के ऊपर एक कर्व बना देना है लाइक दिस. सो दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो अब कॉन्ग्रुएंट फिगर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या फीचर होता है कि अगर मैं मान लो ये CD को सिलेक्ट करता हूँ और इसको AB के ऊपर प्लेस करूँगा तो AB को ये पूरी तरह से कवर कर लेगी. लेट्स सी यस, देखिए येलो लाइन ने ब्लू लाइन सेगमेंट को कवर कर लिया. सो इन दिस वे these line segment are congruent to each other. Now let's take on the circles. Again congruent होने का क्राइटेरिया क्या है? उनकी शेप सेम होनी चाहिए फिगर्स की और उनकी साइज सेम होना चाहिए. ऑब्वियस है, दीज आर टू सर्कल. दोनों की शेप क्या है इन दो फिगर्स की? C1 और C2. सर्कल 1 and circle 2, both are circles, so their shapes are same. And what about their size? दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, सर्कल C1 का भी एंड सर्कल C2 का भी. सो दैट मीन बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम रेडियस. उनका रेडियस सेम है. And if I place this blue circle over the yellow circle, it will exactly overlap it. So let's check it. एक बार चेक करके देखते हैं. See, if I keep this blue circle over yellow circle, it exactly cover the yellow circles. उसको एकदम overlap कर लिया. Okay, so we can say that these two circles are congruent to each other. Okay, so now next figure is we have is rectangles. Two rectangles are congruent if their length and breadth are same. अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो. सी अगर मान लो इस रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल ABCD की,
and breadth is 3 centimeter. Or PQ, then let us see whether yes ABCD rectangle congruent to rectangle PQRS है या नहीं, हम चेक करते हैं. इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस रेक्टेंगल को, इसको ब्लू रेक्टेंगल को ग्रे रेक्टेंगल के ऊपर प्लेस करता हूँ. सो इट हैज एग्जैक्टली कवर्ड द ग्रे रेक्टेंगल. सो इनकी शेप सेम हो गई एंड साइज सेम हो गया, यानी कि इसकी भी लेंथ जो रहेगी ना, सी इट विल बी 4 सेंटीमीटर ओनली. ब्लू रेक्टेंगल की भी लेंथ 4 होगी और breadth will be equal to 3 centimeter. You can see here. So in this way, these two rectangle ABCD and rectangle PQRS are congruent because they have same length and breadth. उनकी length and breadth क्या है, सेम है. Similarly, two squares are congruent if they have same side. अगर उनकी साइड सेम हो. सिमिलरली ये भी इसको ओवरलैप करेगा, ब्लू वाला स्क्वायर ग्रे स्क्वायर को, एंड ग्रे स्क्वायर विल ओवरलैप ब्लू स्क्वायर. सो टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड, उनकी साइड सेम हो, measure of the side is same. Now when two angles are congruent when they have same magnitude means उनकी measure same हो. Like in this case we have angle ABC is 25 degree and angle PQR is also 25 degree. Measure of both the angles, angle ABC and angle PQ are same. So we can say that angle ABC is congruent to का साइन अगेन आई एम टेलिंग यू इज इक्वल टू डाल के ऊपर एक कर्व लाइन होती है, ट्रायंगल एंगल PQR. एंगल ABC is congruent to angle PQR. So far we have learned about the congruent figure. Now let's come to the congruency of triangle, which is very important topic in class 9th. So we have two triangle here, ABC and triangle PQR. ABC and triangle PQR. अगर मैं इस ट्रायंगल PQR को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ABC के ऊपर प्लेस करता हूँ, तो इट विल एग्जैक्टली कवर ग्रे ट्रायंगल ABC. ओके, कैन यू सी? यस, इट हैज एग्जैक्टली कवर इट, ओवरलैप कर लिया पूरा. बट लेट अस सी, क्या ये ग्रे रेक्टेंगल को अगर मैं ब्लू रेक्टेंगल के ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली इसको ये ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? यस, अगेन ग्रे रेक्टेंगल हैज ओवरलैप ब्लू triangle. Gray triangle has overlap blue triangle. Therefore these two triangles are congruent to each other. अगर अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मीन्स देयर शेप्स आर सेम. अब उनका साइज भी सेम होगा क्योंकि दो ट्रायंगल है तो उनकी शेप तो सेम है ही, ऑब्वियस है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स हैं तो शेप उनकी सेम हो गई. बट हाउ टू चेक देयर साइज? तो ईच साइड ऑफ द triangle ABC, this triangle ABC will be equal to corresponding sides of triangle PQR. Like इसमें AB किसके इक्वल है? PQ के. AB is equal to PQ. See, I have marked, single mark करा है. Then BC is equal to QR and AC is equal to PR. Three sides are equal. Similarly इसके तीनों एंगल, थ्री एंगल्स भी इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स के. See, angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. Okay, so we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR because they have same shape and size. And अब इसके
corresponding parts कौन कौन से हैं, we will discuss that now. corresponding parts का मीनिंग है बेटा, जो पार्ट ए बी और पी क्यू में इक्वल है, ए बी और पी क्यू में इक्वल है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में इक्वल है, तो वो corresponding पार्ट्स होंगे. तो corresponding पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल. अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं. तो उसको हम कहते हैं CPCT. अगर हम सपोज हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अगर कुछ पार्ट्स को पूछ लेते कि क्या ये इक्वल होंगे, लाइक एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमसे पूछ लिया, तो यस वी कैन से यस. वाई? बिकॉज ऑफ CPCT. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें कौन कौन से हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. एंड साइड्स में ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर. टोटल 6 पार्ट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में. 6 पार्ट ट्रायंगल ए बी सी के किसके इक्वल होंगे? 6 पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 6 पार्ट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के. तो इस तरह से हम अब जो ये नेमिंग देनी होती है ना, हमें कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही देनी होती है. अब जैसे मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? पी था, क्योंकि ए और पी इक्वल था. बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू था, तो बी एंड क्यू इक्वल हो गए. एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, तो एंगल सी और आर इक्वल हो गए. देन साइड्स में देखें तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल हो गए. बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, यस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग. नेमिंग से भी पता चल रहा है. ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये देखो ए सी और ये पी आर, इसमें ए फर्स्ट पोजीशन पे है और सी थर्ड में है. ऐसे इधर पी फर्स्ट पे है और आर थर्ड पे है, तो ए सी इक्वल्स टू पी आर. तो क्रॉस हमें नेमिंग हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग करनी है ट्रायंगल्स में. सो आफ्टर दैट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, से ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, विल इट बी करेक्ट? नो, ये करेक्ट नहीं है. वाई? इसमें कॉरस्पॉन्डेंस नहीं आ रही, क्योंकि एंगल तो पी और ए इक्वल थे, लेकिन इधर सी और पी हमने कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया नेमिंग के अकॉर्डिंग, और ए को क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया. अगर ये तब हो सकता था कॉन्ग्रुएंट अगर सी और पी की वैल्यू सेम होती, ए और क्यू की वैल्यू सेम होती, और बी और एंगल आर की वैल्यू सेम होती. तो बट इधर ऐसा नहीं है, इधर तो ए पी के इक्वल है, ए तो क्यू के इक्वल है ही नहीं. सो ऐसा हम नहीं लिख सकते. तो हमें हमेशा नेमिंग जो है कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही लेनी होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देयर आर सम रूल्स और वी कैन से क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स which you have studied in class 7th also. क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था. So there are total 5 criteria. First is SAS congruency rule, ASA congruency rule, AAS congruency rule, SSS congruency rule, then RHS congruency rule. यहाँ पर S for side है and A for एंगल है. एंड व्हाट अबाउट RHS? RHS की फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. जैसे हमारे पास राइट एंगल हमारे वर्ड आता है हमारे माइंड में, तो हम सोचते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में, और हाइपोटेन्यूज भी राइट ट्रायंगल में होता है. सो वी विल डिस्कस ऑल 5 क्राइटेरिया वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद SAS congruency rule. SAS means side angle side. SAS means side angle side. तो इससे कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसकी पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं. जनरली समटाइम एग्जाम्स में आ जाता है स्टेट SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. सो आपको बेटा इसकी स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए. सी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ए बी सपोज इक्वल है, ए बी और बी सी हमने दो साइड ले ली, एंड इंक्लूडेड एंगल, और उनके बीच वाला एक एंगल ले लिया, से एंगल बी, एंगल बी हमने ले लिया, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, यहाँ ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम। अगर हमने साइड्स ए बी और बी सी दी है ट्रायंगल ए बी सी की, तो एंगल बी को ही कंसीडर करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ना कि एंगल सी को। आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर अदर साइड, टू साइड्स हो गई, टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, और उनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? ये वाला, दिस वन, आर इक्वल, देन दीज टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। एक बार हम पार्ट्स लिख लेते हैं इनके, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एक तो हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू है हमारे पास, एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, एंड एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। सो ये आइदर गिवन होंगे या हमें इनको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकते हैं और प्रूव भी करना हो सकता है। प्रूव हम कैसे करते हैं? यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रीज। ओके, सो इसमें अब ये ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, जैसे ए बी और बी सी है, उसके बीच में एंगल बी है इन ट्रायंगल ए बी सी, किसके इक्वल है? पी क्यू और क्यू आर के, और उनके बीच के एंगल क्यू के। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR by SAS rule। SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, लेकिन इसमें नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात ही यह है कि जो एंगल्स है ना, इट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, बिकॉज इंक्लूडेड एंगल इज मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा तो एस एस ए तो कोई केस होता ही नहीं है, देयर इज नो एस एस ए केस, साइड साइड एंगल कोई केस हो नहीं सकता। सो यू हैव टू, अगर सपोज अगर हमने ये ए बी और ए सी साइड को कंसीडर करें, बी सी को छोड़ दें, किसको ले लें? ए बी और ए सी किसके इक्वल ले लें? पी क्यू और पी आर के। तो कौन सा एंगल होगा? देन एंगल ए जो होगा ना, अब बी की जगह, एंगल बी की जगह हम क्या ले लेंगे? एंगल बी और क्यू को हट की जगह क्या ले लेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ले लेंगे। अगर ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल है तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे। तो अगेन देखिए बेटा, दोनों साइड्स के बीच में एंगल इंक्लूड हो रहे हैं। सिमिलरली हियर पी क्यू एंड पी आर के बीच में एंगल पी आर है। सो इस तरह से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं जैसे ये ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो इसमें हमने ये पार्ट्स तो ले लिए इक्वल, ये दो साइड्स ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्या आप जो बाकी 3 पार्ट्स हमने ले लिए, टोटल ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स।
अब बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उनके बारे में क्या होगा, उनका क्या होगा, क्या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा अगर ए पी के क्रॉसपोंडिंग है? क्या सी आर के इक्वल होगा होगा या नहीं होगा? क्या ए सी पी आर के इक्वल होगा या नहीं होगा? यस, दे इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट, रिमेनिंग क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे. इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर corresponding parts are always equal. कुछ पार्ट्स तो हम गिवन में ही ले चुके होते हैं या प्रूफ में लिख चुके होते हैं. कुछ पार्ट्स हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद लेते हैं. अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ए सी इक्वल्स टू पी आर है, तो यस आई कैन से दैट ए सी इक्वल्स टू पी आर. ए सी इक्वल्स टू पी आर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, तो इसलिए ए सी इक्वल्स टू पी आर हो गया. और इसका रीजन क्या देंगे? सी पी सी टी. एंड सी पी सी टी की फुल फॉर्म आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन यू, इट इज corresponding parts of congruent triangle. Corresponding part of congruent triangle is CPCT. So remember this. So AC is equal to PR. ऐसे ही एंगल C और एंगल R भी इक्वल हो सकते हैं CPCT से. एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स के corresponding remaining parts. So I have discussed SAS congruency rule. So next we have an example in which we will use SAS criteria of congruency. See, इसमें हमें गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन में इन फिगर हमें दिया है OA. OA is this line segment, this one OA. OA equals to OB. OA equals to OB and OC equals to OD. OC OD के इक्वल है. तो गिवन में हम ये लिख लेते हैं OA equals to OB and OD is equal to OC. Now to prove, अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? We need to show that triangle AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का साइन बनाई हुआ है इस क्वेश्चन में, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC. एक तो हमें ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट हमने शो करना है कि AD इज पैरेलल टू BC. AD किसके पैरेलल है? BC के. हमने 2 पार्ट प्रूव करने हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अब हम SAS या SSS RHS ASA कोई भी रूल यूज कर सकते हैं. तो अभी लेकिन इस क्वेश्चन में आई एम टेलिंग यू SAS ही यूज होगा. सो और AD पैरेलल टू BC कैसे आएगा? कॉन्ग्रुएंट तो अब चलो हम कर लेंगे, 3 पार्ट्स को इक्वल देके इन दोनों ट्रायंगल के कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल ले आएंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे AOD और BOC को. बट AD पैरेलल टू BC कैसे होगा? AD कौन सी लाइन सेगमेंट है? इट इज दिस वन. AD इज दिस वन. इसको हमने पैरेलल प्रूव करना है BC के. तो ये तो पैरेलल होने की कौन कौन सी कंडीशन होती है? या तो इनके बीच के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाए, तभी ये 2 लाइंस पैरेलल होंगी, AD पैरेलल टू BC होगा. या फिर इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, तब ये दोनों जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, पैरेलल होंगी. या फिर को इंटीरियर का सम 180 हो जाए. तो इसमें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल ला सकते हैं. अगर हम एंगल B को एंगल A के इक्वल प्रूव कर देना, सो देखो ये एंगल B एंड एंगल A आर ऑल्टरनेट एंगल. अगर ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल माने इस वाले को BA को, AB को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो हम एंगल C और D भी ले सकते हैं. सो वी विल टेक एनी वन. और एंगल B इक्वल्स टू एंगल A कैसे आएगा? जब हम ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ट्रायंगल BOC के, तो ये एंगल ट्रायंगल AOD का पार्ट है और एंगल B ट्रायंगल BOC का पार्ट है. तो
तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ऐसे प्रूव हो जाएगा हमारा सीपीसीटी से। किससे प्रूव होगा? सीपीसीटी की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो अब हमने कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? ट्रायंगल ए ओ डी। सो आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल ए ओ डी। नेमिंग हमें दी हुई है तो हमें इसके लिए इतना सोचना नहीं है इसकी कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में। ए ओ डी एंड बी ओ सी। तो उसमें ओ ए किसके इक्वल है? एक पार्ट तो में दिया कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। हम चेक भी करते रहते हैं कि क्या कॉरस्पॉन्डेंस हमें मिल रही है। यस, ओ ए और ओ बी सेम पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देन ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ये भी हमें गिवन है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये दो पार्ट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, दो साइड्स गिवन हो गई। सी इधर मार्क भी करी हुई है। सी ओ ओ ए ओ बी इक्वल्स टू ओ ए एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, और क्रॉसपोंडेंस भी बन रही है। ओ डी और ओ सी सेम पोजीशन पे नेमिंग में देखे तो। सो अब तीसरा पार्ट कौन सा होगा? इट कुड बी अ साइड, इट कुड बी अ एंगल। अगर ये एंगल होगा तो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का होना चाहिए। जैसे बी हमने ओ सी और ओ बी के बीच में आना चाहिए एंगल, और ओ डी और ओ ए के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इधर कुछ एंगल, एक इसको एंगल ए ओ डी को एंगल 1 मान लेते हैं, और एंगल बी ओ सी को एंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं, 1 एंड 2। सो अब you can see these two lines, line AB and line segment CD are intersecting at O. So angle 1 और 2 कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। इधर ऐसे ही ये वाला और ये वाला वर्टिकल, लेकिन हमें ये रिक्वायर तो हम ये ही लेंगे। तो एंगल 1, सो आई एम राइटिंग एंगल 1 equal to angle 2 vertically opposite angle, vertically opposite angles। तो अब हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए, 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय सी, 2 साइड्स हैं और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल है। इसकी ओ बी और ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी का ओ बी एंड ओ सी किसके इक्वल है? ट्रायंगल ओ डी and OA of triangle AOD, and included angle be equal है 1 और 2। so therefore they are congruent by SAS, दो साइड और एक एंगल, included angle। so they are congruent by SAS rule, and by CPCT we can say that angle OBC, or if I name it 3 और 4, इस एंगल को मैं 3 नेम दे देता हूँ जो ए वाला है, और इस वाले एंगल को मैं 4 नेम दे देता हूँ। 3 इक्वल्स टू 4 बाय CPCT, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। कुछ पार्ट्स तो ऑलरेडी हम प्रूव कर ही चुके हैं, 3 पार्ट्स, और बाकी के 3 पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल 3 और 4 कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब 3 और 4 किस टाइप के एंगल है? अगर हम BC और AD साइड को कंसीडर करें और AB को ट्रांसवर्सल माने
तो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मैं लिखूंगा सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, therefore AD is parallel to BC। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। सो वी हैव प्रूव द आवर रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल अब हम क्या करेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल करेंगे। इसमें क्या होता है कि दो एंगल होंगे और उनके बीच की साइड इक्वल होगी। सपोज आई हैव टेकन टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ने दो ट्रायंगल ले लिए, एक लिया ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। अब इसमें मान लो मेरे पास एंगल हम मुझे दिया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। ओके, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। B किसके इक्वल है, एंगल Q के। और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। और इसके साथ साथ एक साइड और इक्वल दे दी हमें, BC इक्वल्स टू QR। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA। देखिए साइड दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, इंक्लूड हो रही है। साइड अगर एक्सक्लूड हो जाती है तो भी कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, लेकिन बट बाय AAS। ठीक है, लेकिन जब दो साइड्स होती है तो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए, क्योंकि SSA कोई केस नहीं होता, लेकिन AAS केस हो सकता है। वो दैट आई विल डिस्कस आफ्टर ASA के बाद मैं AAS डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप AAS पे ध्यान दो बेटा, ASA पे ध्यान दो। सो इसमें मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. I have angle B equals to angle Q, angle C equals to angle R, C equals to angle R, and BC equals to QR। ये सब हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA रूल। बाय ASA क्योंकि इसमें दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के बराबर है। सो A बाय ASA रूल। सो अब इसमें एंगल B Q के इक्वल हो गया, एंगल C R के इक्वल हो गया और BC QR के इक्वल हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या एंगल A और PB इक्वल हो सकते हैं, या AB और PQ इक्वल हो सकते हैं, या फिर AC इक्वल्स टू PR हो सकता है? यस, ऑल दीज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, AB इक्वल्स टू PR and AC equals to, no, AB is not equals to PR, AB is equal to PQ। AB PQ के इक्वल होगा, AC is equal to PR होगा। ओके, सो दे आर इक्वल बाय CPCT। अगेन CPCT की फुल फॉर्म क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangle CPCT। okay beta, so CPCT is very important।
इन प्रूविंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल। रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, थ्री पार्ट्स वैसे इक्वल हो जाएंगे गिवन, या हम कॉन्सेप्ट से प्रूव कर लेंगे, और बाकी के थ्री पार्ट सीपीसीटी से आ सकते हैं अगर हमें प्रूव करने को कहा है बाकी के पार्ट्स को इक्वल। सो नेक्स्ट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो व्हाट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल? ये AAS रूल क्या है? सो AAS रूल में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर हमें एंगल B और एंगल Q इक्वल दिया हो, और एंगल C और एंगल R इक्वल दिया हो, और साइड BC के बजाय AB इक्वल्स टू PQ हो, या फिर AC इज इक्वल टू PR हो। दोनों में से कुछ भी हो सकती है। AB इक्वल्स टू PQ भी हो सकती है, और AC इक्वल्स टू PR भी हो सकती है। तो इसमें देखो बेटा, जो साइड है वो एंगल के बीच में इंक्लूड नहीं हो रही। तो इसमें हमारे पास क्या आया, पहले एंगल, फिर साइड आई। और इससे प्रीवियस वाले केस में क्या था, हमारे पास पहले एंगल था, फिर साइड थी, फिर एंगल था। तो ये ASA था। सी, इधर भी पहले एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, AAS में पहले एंगल, फिर साइड। सो इट इज AAS, एंगल साइड। तो इसमें एंगल B और Q इक्वल हो गए, एंगल C और R इक्वल हो गए, और AB इक्वल्स टू PQ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. Okay, so by which rule? AAS rule. AAS rule एंगल साइड रूल से हो गए। सो ये AAS रूल भी आपको क्लियर होगा बेटा। अब नेक्स्ट इज SSS रूल। SSS रूल, ट्रिपल S, तो यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल, जैसे कि इस AB ले लो, साइड AB ले ली हमने, देन AC एंड BC ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी कि PQ, PR और QR के रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगे। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि AB PQ के इक्वल होगा, AC PR के इक्वल होगा, और BC QR के इक्वल होगी। सो थ्री साइड्स अगर किसी भी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल हो जाती है, तो दीज टू ट्रायंगल आर कंसीडर्ड एज congruent by SSS rule. So we can write like this: in triangle ABC and triangle PQR, AB equals to PQ, AC equals to PR, BC इक्वल्स टू QR। ये सब हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, और हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके भी, ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स एक्सियोम्स उनको यूज़ करके भी हम अपना रिजल्ट ला सकते हैं। तो थ्री पार्ट्स तो ये इक्वल हो गए। तो जब तीनों साइड एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS rule। SSS rules। अब देखो बेटा, इसमें AB PQ के इक्वल हो गया, AC PR के इक्वल हो गया, AC PR के क्रॉसपॉन्डेंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं हम, और BC इज कोरस्पॉन्डिंग टू QR। तो तीन साइड्स इक्वल हो गई। अब बचे क्या, थ्री एंगल्स। अब हम CPCT से बाकी तीन एंगल्स भी
इक्वल मान सकते हैं। और हमें जिस पार्ट जो अगर कोई भी एंगल कह दे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, तो हम कहेंगे यस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी बाय CPCT. CPCT, I have explained you, it is corresponding part of congruent triangle. CPCT is corresponding part of congruent triangle. So ये हमारा SSS congruency rule हो गया। अब नेक्स्ट रूल इज RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS से आपके माइंड में कहीं ये आ रहा हो राइट हैंड साइड, हाँ ये भी होता है बट ये लीनियर इक्वेशन में होता है। जनरली बच्चे RHS को राइट हैंड साइड भी समझ लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में RHS का एक और मीनिंग होता है विच इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। जब आप माइंड में आया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, तो हम किसके बारे में सोचते हैं? राइट ट्रायंगल के बारे में, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के बारे में। उसी में हमें राइट एंगल मिलता है, उसी में हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है, और साइड तो बाकी ट्रायंगल्स सभी ट्रायंगल्स में होती है। सो अब मैंने दो राइट ट्रायंगल ले लिए, राइट ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल एट B है, एंड अनदर राइट ट्रायंगल लिया राइट ट्रायंगल PQR विच इज राइट एंगल एट Q जो कि Q पे राइट एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर उनका एक एंगल 90 डिग्री इक्वल हो। सो इसको हम लिख के समझाता हूं मैं तुम्हें बेटा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप राइट ट्रायंगल ABC और राइट ट्रायंगल PQR भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ईच 90, तो ये राइट एंगल हो गया। ओके, राइट एंगल, सबसे पहले एक राइट एंगल होना इंपॉर्टेंट है। देन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, जैसे इधर एंगल B 90 है, तो एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC। तो AC इज एन हाइपोटेन्यूज। ऐसी एंगल Q हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? PR। सो AC एंड PR आर हाइपोटेन्यूज। सो हम कहेंगे AC इक्वल्स टू PR। ये हमें गिवन होगा या हमें किसी तरह से प्रूव करना होगा। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ये कंडीशन भी जरूरी है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल ना आए ना, तो हम ये RHS नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हाइपोटेन्यूज की जगह अगर मान लो AB और BC आ जाता, AB और BC साइड हो जाती, तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाता, चाहे इसमें 90 डिग्री ही क्यों नहीं है। ठीक है, तब वो किससे होता? SAS से। लेकिन अभी इधर हाइपोटेन्यूज है तो ये RHS से ही जाएगा। अब एक और साइड भी हो सकती है इसमें। अब वो साइड AB इक्वल्स टू PQ भी मान सकते हैं हम, या फिर BC इक्वल्स टू QR भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आएगा। या तो AB इक्वल्स टू PQ आ जाएगा, या फिर BC इक्वल्स टू QR आ जाएगा। अभी मैं मान लेता हूं कि BC और QR इक्वल है, तो तीसरी साइड भी इक्वल आ गई, BC इज इक्वल टू QR, ये साइड हो गई। सो बाय इसमें RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सी बेटा, तीनों कंडीशन जरूरी है, राइट एंगल भी होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए, और साइड भी एक होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो हम इसको RHS से कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। चाहे राइट एंगल मिसिंग हो, चाहे हाइपोटेन्यूज मिसिंग हो, या फिर अदर टू साइड में से कोई साइड मिसिंग हो, तो भी हम नहीं कह सकते। मान लो हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया और 90 डिग्री भी इक्वल आ गया, और लेकिन अगर हमें साइड BC और QR की बजाय एंगल C इक्वल्स टू एंगल R दे दिया, तो एंगल साइड नहीं हो जाएगा। अगर एंगल B और C एंगल Q और एंगल R के इक्वल हो गया, चाहे एंगल B और Q 90 राइट एंगल ही क्यों नहीं है, और AC और PR हाइपोटेन्यूज ही क्यों नहीं है, तो भी ये हम इसको RHS नहीं मानेंगे। वाई? बिकॉज उसमें S वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो तब वो AAS से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड, बिकॉज में एक एंगल और कोई भी एक दो एंगल
इक्वल हो गए एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल, और एक और साइड इक्वल हो गई। साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसको हम हाइपोटेन्यूज को भी उस केस में साइड ही मान लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी इज, लेकिन अभी हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया बाय आर एच एस रूल। सो तो आर एच एस रूल हम ऐसे अप्लाई करेंगे, और बाकी के पार्ट एज यूजुअल हम सी पी सी टी से ले सकते हैं। जैसे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी भी सी पी सी टी से आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू पी, और एंगल आर इक्वल टू एंगल सी भी सी पी सी टी से हम ले सकते हैं। सो दिस इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमने आज कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कर लिए। There are five congruency rule. Which were those? SAS side angle side, ASA angle side angle, AAS angle side, then SSS side congruency rule, and then RHS. So with this, our introduction to chapter 7 part 3 is completed. Thank you.